السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مکہ حرم 7 مارچ 2025 7 رمضان 1446 ہجری اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا کرم و احسان والا، وسیع انعام و نوازش والا ہے۔ اس نے ماہ رمضان کا روزہ اپنے مومن بندوں پر فرض کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو متقیوں اور اپنے نیک بندوں کا ولی ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان سے نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور بیت اللہ الحرام کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر اور ان کے صحابہ پر جو ہدایت کے ستارے اور تاریکی میں چراغ ہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ ہے، اور اللہ کے تقوی کے بغیر زیادہ عمل تھوڑا ہے۔ آپ دین کے ارکان اور ایمان کی شاخوں کو مضبوط سے تھامیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس پر ایمان کے بغیر دنیا و آخرت میں تمہیں نجات اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ تم اس زندگی کی مہلت کو اس کے نکلنے سے پہلے غنیمت جانو اور طاعتوں کی طرف جلدی کرو، بے شک تم ان کے معزز ترین زمانے میں ہو۔ انسان اس دنیاوی زندگی میں نہ بہت لمبی عمر پائے گا اور نہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ عدم سے وجود میں آیا اور اس کا انجام عدم ہے۔ اس دنیا میں انسان پر جو گھڑیاں گزرتی ہیں وہ گویا لمحات ہیں، ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ آتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے آخری انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جسے ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ ہم اپنے کچھ بھائیوں کو یاد کریں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے۔ وہ خیر و برکت کے مہینے رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی عمر ختم ہو گئی اور ان کے اعمال منقطع ہو گئے۔ وہ زمین کے اس حصے میں چلے گئے جہاں ان کے ساتھ صرف ان کے اعمال ہیں، اور اپنے بعد اپنے آپ کے لیے اگر کچھ چھوڑا ہے تو صدقہ جاریہ یا نفع بخش علم یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ ہم بھی وہاں جانے والے ہیں جہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح زمانے نے اپنی گردش پوری کر لی، اور اس سال ماہ رمضان لوٹ کر آیا جب کہ ہم بہت کچھ بھول چکے تھے، اور ہم اپنے دنیاوی معاملات میں دور تک بہہ گئے تھے۔ رمضان لوٹ کر آیا اور ہمارے لیے مقدر کیا گیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ لوٹیں، تاکہ ہم اس کے دمکتے دنوں کو دیکھیں اور اس کی روشن راتوں کو جئیں۔ مسلمانوں، اپنے مومن بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تھوڑے دن پہلے ہی بھلائیوں کے موسموں میں سے ایک موسم کو پانے کی سعادت بخشی، اور وہ ہے رحمتوں و برکتوں والا ماہ رمضان، جس میں روزے دار خوش ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسا مہینہ جس کے فرائض کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض سے کئی گنا ہے، اور جس کے نوافل دوسرے مہینوں کے فرائض کی مانند ہیں، جو سخاوت و صدقات کا مہینہ ہے، جس میں خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر اس کا روزہ فرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا قیام مسنون کیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے: تمہارے پاس برکتوں کا مہینہ رمضان آ چکا ہے، جس میں اللہ رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اور تم کو لے کر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ سو تم اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ۔ بدبخت وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ اس حدیث کو ہیثمی نے مجمع الزوائد میں طبرانی کی طرف منسوب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔
इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। रमज़ान के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो कि सबसे अफजल तरीक़ा है, ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की इबादत बकसरत करते थे। चुनांचे आप लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और सबसे ज़्यादा सखावत आप रमज़ान में करते थे। बकसरत सदका देते, एहसान करते, कुरान की तिलावत करते, नमाज़ पढ़ते, ज़िक्र करते और इतिकाफ़ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में उम्रा करने पर उभारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से फरमाया, हमारे साथ हज करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? उस औरत ने अर्ज़ किया कि हमारे पास एक पानी खींचने वाला ऊँट था जिस पर मेरे शौहर और बेटे सवार होकर चले गए। एक दूसरा ऊँट छोड़ गए हैं जिस पर हम पानी लाते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। सही बुखारी और मुस्लिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर रमज़ान में जिन इबादतों का एहतमाम करते थे उनका एहतमाम दूसरे महीनों में नहीं करते थे। बस रमज़ान को पानी की नेमत पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ़ करो, जद्दोजहद करके और मुख्तलिफ़ ताअतों से उसके औक़ात को मामूर करके उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह तुम पर रहम करे। गलतियों और गुनाहों से उसकी हिफाजत करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये फ़जीलतों के औक़ात हैं, उन्हें गनीमत जानने वाले कहाँ हैं? और इन नफ़ा बख्श तिजारतों के मौसम हैं, उनके तलबगार कहाँ हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, इब्न आदम के तमाम आमाल उसके लिए है मगर रोज़ा वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ख़ुद ही उसका बदला दूँगा। रोज़ा एक ढाल है, जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो बुरी बातें और शोर गोगा ना करे। अगर उसे कोई गाली दे या उससे झगड़ा करे तो उसे ये कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलती हैं, एक तो रोज़ा खोलने के वक्त खुश होता है, दूसरी जब वो अपने मालिक से मिलेगा तो रोज़े का सवाब देख कर खुश होगा। अल्लाह मेरी और आप सब की मदद करे। हम रमज़ान का सियाम व क़याम ईमान के साथ सवाब की उम्मीद करते हुए अंजाम दें। हमारी तमाम लग़ज़िशों को माफ़ करे, हमारे गुनाहों को ढाँप दे और सवाल जवाब के दिन हमें माफ़ करे। अल्लाह मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान में बरकत दे, उसके बयान से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह अज़ीम से अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़रत तलब करता हूँ। आप लोग भी उससे मग़फ़रत मांगें, वो बड़ा गफ़ूर रहीम है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपने बंदों के दिलों को अपने इनामात से मामूर किया और उनके दिलों को दीन और उसके अहकाम की रोशनियों से आबाद किया और अपनी बारीक हिकमत से मुकर्रर की गई शरीयत और अपने अहकाम का उनसे अहद लिया। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, ज़ात व सिफ़ात और अफ़ाल में उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। उसने उन्हें तमाम लोगों की तरफ मबऊस किया ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब करे। दुरूद नाजिल हो उन पर, उनकी रस्सी को मजबूत से थामने वाले, उनके आल व असहाब पर। अम्मा बाद, मैं तुम्हें और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा और उसकी मग़फ़रत और उस जन्नत की तरफ जल्दी करने की वसीयत करता हूँ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है, जो मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। और जान लो कि हमारे मुबारक महीने फ़जीलतों और भलाइयों के महीने, अमल और नेकियों के महीने में से जितने अय्याम गुज़र गए सो गुज़र गए, बाकी अय्याम भी उसके पीछे पीछे हैं और अनक़रीब ख़त्म हो जाएंगे। सआदतमंद वो है जो अपने मामले पर गौर करे, अपनी हिफाजत का सामान ले और फ़ुर्सत के ख़त्म होने से क़ब्ल उससे फ़ायदा उठाए और जूद व करम और एहसान वाले अपने रब के फ़ज़ल को गनीमत जाने। लिहाजा खूब कुरान की तिलावत करो, खाना खिलाओ और फ़कीरों और यतीमों पर सदका व खैरात करो। और इस माह में अपने आज़ा व जवारी को मासियतों और गुनाहों से बचाओ और सैयदुल अनाम और बदर तमाम पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह ताला का फरमान है और अल्लाह उसके फ़रिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह दुरूद सलाम नाजिल फरमा
तमाम मखलूक़ात के सरदार और हमारे सरदार और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाकिज़ा और पाकबाज आल पर, आपके रोशन मुबारक सहाबा पर जो आपकी दावत के अमीन और आपके लश्करों के कायद थे, और उस पर जिसने उनके लिए रहमत की दुआ की और जिसके दिल में उन सब के लिए कोई कीना नहीं, सो वो उन लोगों में से है जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान में किया है। और वो लोग जो उनके बाद आए वो कहते हैं, ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान लाए और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना ना रख। ऐ हमारे रब, बेशक तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। और उन पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा जो क़यामत के दिन तक अच्छी तरह से उनकी पैरवी करे हमसे और उनसे राज़ी हो जा। ऐ रब्बल आलमीन।